Today, we are honored to have a truly inspiring guest with us, Tarini, a remarkable young girl who has taken the brave step to share her journey of breaking free from the grip of social anxiety. She's pursuing law at IP University, Delhi. Tarni is here to speak out, inspire, and remind us all that mental health challenges can be overcome with courage and determination. I would like to tell my viewers that our guest has chosen to keep her identity private, so her camera will remain off during this interview. But trust me, her story and insights are so powerful, you won't need to see her face to feel her impact. So, without any further delay, let's dive right in. Over to you, Deepti. Thank you, Rupali. Welcome, Tadni, in our mental health series. And without further ado, let's dive into the conversation. So, our first question to you: what were some of the early signs that made you realize you were dealing with social anxiety? Yeah, so some of the early signs which I faced were panic attacks, sweaty palms, and major anxiety. Yeah, so these were the early signs. Okay. You are on mute. Yeah. So, yes, Tarni, as you said about the physical symptoms that you talked, did you feel any kind of disassociation with the society, or did you feel that something is affecting you in your life and relationships? Was it affecting your studies also? Yeah, relationships, if I talk about, um, I think the relationship patterns with the people, with my childhood friends especially, I became distant with them. I was not talking to them. It was like a complete isolation. And also, I faced a sort of an isolation, or I can say rather fear, to express myself with my family members as well. And about studies, not majorly in my studies, but yeah, when the teacher used to call my name and used to announce my marks in front of the whole class, then I used to be very panic, or I can say like I was very much scared कि भैया अब तो लोग जज करेंगे मेरे को, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो that fear of judgment was always there. So yeah. ओके सो जैसे आपने बताया कि स्टडीज पर इतना इफेक्ट नहीं था, लेकिन आपको ऐसा कहीं लगा कि जो आप जहां पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, आपके जो फील्ड्स हैं इंटरेस्ट के, वो इफेक्ट हो रहे हैं? इफ इन केस आपका कुछ और इंटरेस्ट हो जो आप फॉलो करना चाह रहे हो? Uh, yeah, definitely. There were some instances जैसे कि if like um, जैसे कि I have been very fond of theater or dance, and उधर बहुत ज़्यादा deep socialization की ज़रूरत होती है. Obviously, you have to express yourself and बहुत कुछ करना होता है. And even जैसे कि presentations होती थी, because this phase ये जो मेरा पूरा phase गया, that was थ्रू आउट माई टीन एज लाइफ. एंड तब आप स्कूल में होते हो, तब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. तो उधर तो बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी. एंड मतलब एकदम से एनजाइटी होती थी कि अगर मैं ये करूँगी तो अब मतलब कोई ना कोई मेरे को अब जज करेगा, या द अदर दोज नेगेटिव थॉट्स इन माई माइंड ऑलवेज. एब्सोल्युटली दारिनी, वी कैन टोटली अंडरस्टैंड जिस सिचुएशन को आपने फेस किया होगा. एंड या जिस टीनेज लाइफ की आप बात करें, ऑफ कोर्स दैट इज अ क्रूशियल पॉइंट. आई थिंक हर बच्चे के लिए वो बहुत क्रूशियल स्टेज होती है. और उसमें इस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, वी कैन टोटली अंडरस्टैंड. सो इसी के रिगार्डिंग, हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि लाइक आपने जैसे ऑलरेडी बताया अपने चैलेंजेस के बारे में हमें.
सो लाइक व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट जिससे आपको लगा कि अब आपको काउंसलिंग या थेरेपी की नीड है एंड यू वांट टू टेक थेरेपी? I still remember it was in my school जहाँ जहाँ पे आई डोंट नो क्या हुआ था अब मेरे को एकदम से पैनिक अटैक आया बहुत बुरा वाला एंड मेरे वही जैसे मैंने आपको साइंस भी बताए थे बहुत ज़्यादा स्वेटी हो गए थे मेरे पाम्स एंड मैं रोने लगी थी एकदम रोने की वर्ज पे हो गई थी एंड मैं जल्दी से क्लास छोड़ के मैं वॉशरूम में मैंने अपने आप को लॉक कर लिया था एंड आई सैट लाइक देयर इनसाइड एंड आई थिंक 2-3 घंटे तक मैं बाहर ही नहीं आई थी एंड उसके बाद इन द एंड जब मैं जा रही थी माय मदर वाज कमिंग टू टेक मी तब आई वाज लाइक कि आपको एक थॉट आ जाता है ना एकदम से कि आपके साथ कुछ सही नहीं हो रहा मतलब यू आर लाइक कि समथिंग इज रॉन्ग विद मी मेरे साथ कुछ 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 गलत है मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा मुझे ये नहीं लग रहा कि मतलब मैं अपनी जिंदगी जी पा रही हूँ ढंग से कुछ तो गलत है मेरे साथ तो आई थॉट कि लाइक यू नो मम्मी आई नीड टू टेक थेरेपी लाइक आई थिंक आई शुड टेक थेरेपी बिकॉज मुझे ऐसा लगता लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सो या दिस वॉज द इंसिडेंट जिसने मुझे थेरेपी एंड काउंसलिंग की तरफ बढ़ाया. It's truly inspiring to hear how you have faced your fears and taken charge of your mental health, Tarini. It shows immense courage and resilience for sure. Um, अब मैं थोड़ा सा और डीप में जानना चाहूंगी वर देयर एनी स्पेसिफिक टेक्निक्स या कोई स्ट्रैटेजीज जो काउंसलिंग के दौरान आपको ऐसा लगा कि या दीज आर समथिंग विच आर पर्टिकुलरली हेल्पफुल टू मी टू डील विद माय सोशल फोबिया? Yeah, there were certain techniques which the counselor or we can say the therapist suggested me. I still remember कि जब like in my initial stage of counseling or the therapy sessions उन्होंने मुझे like she was my school counselor basically so उन्होंने मुझे बोला कि यू नो यू जस्ट स्टार्ट बाय विशिंग गुड मॉर्निंग टू your teachers because I used to not do that obviously क्योंकि social phobia in the name as the name suggests social anxiety slash social phobia कि you know अब बात आपको डर ही लगता है इंसान से तो it's like you are not able to do anything आप बात ही नहीं कर सकते कुछ भी नहीं बोल सकते so she started you know motivating me कि you know don't be scared and hello hi बोलो अपने classmates को like just keep a target of 3 or 4 people like 2 teachers and 2 of your classmates and then अब जब आप ये achievement पूरी कर लो तब आप मुझे बताओगे and I'll give you a reward I'll give you a some sort of a reward and that was a surprise for me so I used to be like you know थोड़ा excited होती थी मैं कि अच्छा क्या surprise मिलेगा मेरे को क्या होगा तो मैंने फिर मतलब ये टास्क कंप्लीट भी करा एंड जबकि मैं मतलब थोड़ा बहुत नेगेटिव थॉट्स तो आते ही थे ऑब्वियसली कि ये कैसे करूंगी मैं डर लगता था कि ये कैसे होगा ऑब्वियसली बट देन आई यूज्ड टू बी लाइक यू नो लाइक आई वांट टू यू नो प्रूव कि मतलब यू नो लाइक आई कैन डू दिस लाइक आई कैन डू दिस बिकॉज या सो थैंक यू टू माय काउंसलर ऑब्वियसली शी मोटिवेटेड मी अलॉट. Absolutely, Dharni. Like you have already mentioned कि किस तरह से छोटी छोटी टेक्निक्स ने जो काउंसलर ने आपको सजेस्ट की दैट हेल्प यू अ लॉट. सो इसी की डीपली अगर हम थोड़ा और आगे आपकी जर्नी को लेके जाएं, जिस तरह की टेक्निक्स आपके काउंसलर ने आपको सजेस्ट की या और जो भी कुछ आपको लगा उसके बाद कैसी पहला क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आया या किस तरह का चेंज आपने नोटिस किया इस काउंसलिंग के बाद अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा आप अगर शेयर करना चाहें हमसे? Yeah. Uh, Changes I can say obviously relationships friendships and all जिनसे already like
थे मेरे जिनसे मतलब एकदम ही कट ऑफ हो गया था ऑन दिस इनिशियल स्टेज, उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। इवन फैमिली में भी आई स्टार्टेड बीइंग एक्सप्रेसिव एंड इंटरैक्टिव। एंड जैसे कि आई टोल्ड यू कि टास्क दिया था उन्होंने मुझे हाय हेलो करने का, तो पीपल पहले ये सोचते थे कि ये तो बिल्कुल भी बात नहीं करती, ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलती है वगैरह, मतलब उन्हें उन्हें ये लगता था कि मतलब ओ गॉड कितनी अजीब है ये ये कुछ किसी से बोलती ही नहीं है, बिल्कुल ही एकदम शांत है, एकदम म्यूट है। एंड देन उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब लाइक आई एम फ्रेंडली, लाइक मेरा नेचर इज नॉट रूड और एग्रेसिव और समथिंग। um so yeah, like I'm expressive, so obviously there were a lot of changes जिससे थेरेपीज के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू मुझे फील महसूस हुआ। अम, एक छोटा सा क्वेश्चन एक मेरे माइंड में आया तारनी। जनरली हम लोगों को लगता है कि जैसे आपने मेंशन किया कि आप बोलती नहीं थी, किसी से बात नहीं करती थी, तो हम लोग या एकदम से नाम दे देते हैं तो इंट्रोवर्ट है, और जो बात करता है उसे बोल देते हैं एक्सट्रोवर्ट है। तो इज इट, जो लोग इंट्रोवर्ट हैं, ये कैसे पता चलेगा कि वो इट्स देयर पर्सनालिटी ट्रेट, या फिर दे आर फाइटिंग विद सोशल फोबिया इश्यूज? आई थिंक कि जो ये इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, दीज आर पर्सनालिटीज। ये ऑलरेडी एक इंसान को डिफाइन करने के लिए दिया जाता है कि हाँ ये इंट्रोवर्टेड है, ये एक्सट्रोवर्ट है, और ये एम्बीवर्ट है एंड ऑल, मतलब मिक्सचर है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का। एंड मुझे भी पहले, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, लगता था कि सोशल फोबिया, जब तक नहीं मुझे पता चला था कि है कि मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, मैं मतलब हाईली इंट्रोवर्टेड हूँ, तभी मैं ऑब्वियसली, तभी मैं अवॉइड कर देती थी कि मुझे क्या थेरेपी की जरूरत वगैरह, जब तक एक्सट्रीम लेवल पे नहीं पहुंचा ऑब्वियसली। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है एक इंट्रोवर्ट इंसान में और सोशल फोबिया वाले इंसान में। सोशल फोबिया तो डर ही हो गया एक तरीके से, कि आप डरते हो इंसान, मतलब आप कोई देख लिया, कोई आपको पता चल रहा है कि हाँ अब ये मेरे से बात करने आ रहा है, तो यू विल बी लाइक एकदम शांत, तुम लाइक यू आर लाइक वेरी मच फियर फियर, और आपको एनजाइटी इश्यूज हो रहे हैं मेनली। लेकिन एक इंट्रोवर्टेड इंसान होता है, वो अगर आप उनसे बात करोगे, हाय हेलो करोगे, और अगर वो एकदम से धीरे से कंफर्टेबल, मतलब अगर वो कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो देन दे विल इंटरैक्ट। लेकिन सोशल फोबिया वाले जो लोग होते हैं, वो इंटरैक्ट ही नहीं कर पाते हैं, वो इंटरैक्ट ही नहीं कर पाते। तो इंट्रोवर्ट इंसान और एक सोशल फोबिया वाले इंसान में, या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो फेस कर रहा है, उसमें बहुत ये सबसे मेजर डिफरेंस है। एंड मुझे तो आफ्टर व्हेन, मतलब जब मैं इस फेज से बाहर निकली थेरेपी लेने के बाद, सेशंस लेने के बाद, तो मुझे खुद रियलाइज हुआ कि आई एम नॉट इंट्रो, मतलब मैं इंट्रोवर्टेड नहीं हूँ, मैं एम्बीवर्ट हूँ। मतलब मुझे खुद पता चला कि या सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, कि आपको पता चला है कि आप हो कौन, आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो मुझे पता चला कि हाँ मैं एम्बीवर्ट हूँ, एम्बी हूँ, मतलब इंट्रोवर्ट भी और एक्सट्रोवर्ट भी। तो या ग्रेट, ग्रेट। सो आपकी सारी बातें सुनने के बाद जो मेरे अंदर फीलिंग आ रही है, दैट आई वुड लाइक टू टेल यू। आई फील दैट योर जर्नी इज अ पावरफुल रिमाइंडर दैट नो मैटर हाउ ओवरवेलमिंग द स्ट्रगल्स फील, there is always hope for a change. Do you agree, Tarini? Yeah, definitely. Yeah. Great. So, what would you like to say to the society? I mean, how should they support people having social anxiety disorder? आई फील दैट जैसे कि मेरे साथ भी हुआ, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि आई यूज टू थिंक दैट आई एम इंट्रोवर्ट, मतलब आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई डोंट लाइक टू सोशलाइज अ लॉट, एंड आई यूज टू अवॉइड कि मतलब क्या ही है, मतलब ठीक है, जब तक इनिशियल स्टेज पे नहीं पहुंचा जहाँ पे आई स्टार्टेड फेसिंग पैनिक अटैक्स एंड एंजाइटी इश्यूज अ लॉट। And I feel that social anxiety disorder cannot be treated by your ओन सेल्फ, कि हाँ हमने कर लिया, इधर पार्टिसिपेट कर लिया, या किसी कोई एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लिया, कुछ ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। यू नीड टू टेक थेरेपी सेशंस, काउंसलिंग सेशंस, बिकॉज आई थिंक जो थेरेपिस्ट होते हैं या जो काउंसलर्स होते हैं, दे आर ऑब्वियसली अवेयर अबाउट
they have way good knowledge about these things. So they can guide you better, and they'll give you the path, not the solution but the path, कि इस पाथ से हाउ यू विल डील विद इट। मतलब एक तरीके से वो आपको रास्ता दिखा देंगे कि हाँ आप मतलब इधर जाइए, एंड इजी इजी करके टेक 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 स्मॉल स्मॉल स्टेप्स एंड ऑल। एंड या सो I'll say that if you feel जो भी मैंने साइंस बताए, इफ यू फील कि आपके साइंस मैच कर रहे हैं सिमिलरली, तो यू नीड टू टेक थेरेपी जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी। Yeah, great, Tarni, and I absolutely agreed with you. अगर इसी के रिगार्डिंग हम आपने जैसे बताया कि जो भी साइंस के बारे में सिम्टम्स के बारे में बताया कि कितना अर्ली अर्ली प्रिवेंशन बिकॉज बहुत हेल्प कर सकती है पर्सन को। तो अगर इसी के रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई ऑलरेडी सोशल एंजाइटी से स्ट्रगल कर रहा है बट ही और शी इज जो है वो थेरेपिस्ट तक नहीं पहुंचना चाहता या हेजिटेट कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या कुछ ऐसा कि वो एटलीस्ट जो स्ट्रगल कर रहा है पर्सन वो थेरेपी तक पहुंच सके, काउंसलिंग तक पहुंच सके? आई थिंक I'll motivate that person ki, it is okay to feel like this, because obviously मैं समझूंगी कि हाँ कि that person is going through a lot, and therapy, because obviously that will help. As I said कि therapy बहुत ज़्यादा ज़रूरी है if a person who is facing with social phobia, because um, उसी से ही दैट पर्सन विल गेट द रिफ्लेक्शन दैट ऑफ हु दैट पर्सन इज। क्योंकि इस फेज में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं अबाउट योर सेल्फ कि लोग मुझे जज करेंगे, या ऐसा हो गया, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे होगा, एंड यू विल फील मोर पॉजिटिव एंड इम्प्रूव्ड। एंड इवन खुद जैसे कि आफ्टर थेरेपी सेशंस आई हैव फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट। पहले तो खैर कॉन्फिडेंस था ही नहीं, बट इम्प्रूवमेंट हुई है। तो दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लाइक जैसे कि दवाई हम लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, एंड देन वी आर लाइक हाँ जैसे किसी को कोल्ड कफ होता है तो दे टेक मेडिसिन एंड देन दे फील रिलीव्ड। सो इट्स लाइक अ मेडिसिन, थेरेपी इज लाइक अ मेडिसिन जो कि सोशल एंजाइटी को ट्रीट कर सकता है कि आप लोगे एंड यू विल फील रिलीव्ड। सो दैट इज वाई इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो डेफिनेटली गो सीक हेल्प फ्रॉम अ थेरेपिस्ट और अ काउंसलर। या थैंक यू तारिणी, एंड रियली जो चीजें आप अभी हमसे डिस्कस कर रहे हो, आई एम प्रिटी श्योर कि ये चीजों से बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं जो ऑलरेडी इस मेंटल इलनेस से कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें काफी हेल्प मिलेंगी, एंड दे कैन थिंक कि यस वी कैन आल्सो आल्सो सीक हेल्प। एंड कहीं ना कहीं थेरेपी या काउंसलिंग लेने में कोई भी ऐसा उनको जो है हेजिटेट नहीं होना चाहिए। थैंक यू तारिणी या रूपाली। Uh, Tarni, speaking about social anxiety so openly is such a bold step, I must tell you that. And it's going to resonate with so many people. और उन्हें ये लगेगा कि वो अकेले नहीं हैं। और ये उनके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी रहेगी जो आज आपने हमारे साथ शेयर करने के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओके किया, और आज आप हमारे साथ हैं। रियली आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। और जो आपने ये अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी में यूज किया है, और जो आप बता रही हैं, इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग। इधर मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगी। अम, अपने क्वेश्चन से पहले जो मेरा मेन क्वेश्चन मैं जानना चाह रही थी, मेरे मुझे क्यूरोसिटी है जानने की कि जब आपको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से आप गुजर रही थी, तब आपके फ्रेंड्स ने कोई कभी ऐसा कोई कमेंट
जो आपको बहुत हर्ट, आई डोंट वांट यू टू रीलिव दोज मेमोरीज, लेकिन क्योंकि अब आपने कहा आप हील कर चुकी हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं, कुछ बताना चाहेंगे कि आपके फ्रेंड्स ने उस वक्त कुछ ऐसी ऐसी बात आपको कही कि आपको लगता था कि यार दे डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू एंड सी हाउ दे आर पासिंग कमेंट्स, ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है? इंसिडेंट्स तो काफ़ी थे, जैसे कि बहुत लोगों को लगता था कि आई एम वेरी रूड एंड आई एम वेरी एरोगेंट, मैं किसी से बात नहीं करती। एंड कुछ कुछ लोगों को लगता था कि मैं व्हाट डू वी कॉल गूंगी, मतलब मैं बोल नहीं सकती, मेरी आवाज़ ही नहीं है मेरे पास, बिकॉज ऑब्वियसली एकदम साइलेंट रहना, तो लोग पीपल यूज टू अज्यूम दैट कि ये तो बोल ही नहीं सकती। एंड बहुत ज़्यादा रूड एरोगेंट, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन था, लाइक पीपल यूज टू थिंक। एंड लाइक दिस वाज दैट। एंड या मेजरली तो यही था या, पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल। राइट। या So, what does life look like for you now? And how would you describe your overall mental health journey? um for now, I feel that obviously I'm very much confident than that girl who faced a lot of things as a teenager. And it was, I can say that जैसे कि पीपल मतलब जब बताते हैं अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में, चाहे कुछ भी हो, वैसे भी दिस वाज आल्सो ऑब्वियसली अ मेंटल हेल्थ इशू ओनली सॉर्ट ऑफ। तो some people they become weak, but I think that this whole journey has made me strong. And I have embraced, myself, and when I look back, I'm like, I'm so proud of myself that I have improved a lot, and I've become such a confident person. And a lot of people, like now, like now I'm in college, so they appreciate me that about like what my personality is, how I interact with people and all. And earlier I used to not understand कि कैसे मैं conversation जाके करूँ किसी person से, how should I start a conversation, and now I'm very good at that. And even like presentations, like जब मैं देती हूँ, obviously college में बहुत ज़्यादा presentations होता हैं, even in a field which I am, law, so उधर तो बहुत ही ज़्यादा you have to speak a lot. So I have got a lot of appreciation for that as well, because obviously I'm able to express myself fully. And yeah, and I'm also into theater now. Earlier I was not able to proceed with that because of this stuff only कि वही मतलब मैं कैसे करूँगी and all, again वो negative thoughts. But now I'm able to do a lot of things in life, and I have achieved a lot of things in life. So yeah, and obviously there are more achievements and goals which I have to accomplish definitely in future. Yeah. Yeah. So we are so proud of you, Tarni, for being a voice of change and breaking the stigma around mental health. Your courage to share your story is a proof that vulnerability is a strength and not a weakness. All the best. Thank you. Congratulate Tarini. Really, like Rubali said, इट्स अ ग्रेट करेजियस स्टेप जो आज आपने लिया है और इस तरह से अपनी पूरी ओवरऑल जर्नी को हमारे साथ शेयर किया है। मैं इस सेशन को एंड करने से पहले आपकी पूरी जर्नी को जानने के बाद एक क्वेश्चन मेरे माइंड में जरूर है, बिकॉज वी बोथ आर वर्किंग विद टीनेजर्स ऑल्सो। सो Yeah. मैं जानना चाहती हूँ इस पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम आपकी, ऑफ कोर्स हर पर्सन के लिए उसकी फैमिली बहुत मैटर करती है, तो Yeah. अगर कुछ भी, इफ यू आर कंफर्टेबल, कि फैमिली ने किस तरह आपको हेल्प किया। एंड ये क्वेश्चन मेरे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऐसे बहुत से टीनेजर्स हैं जिनके साथ मैं भी जब काम करती हूँ तो मुझे ये चैलेंज देखने को मिलता है कि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करेगी। दे वांट टू Yeah. सीक हेल्प, बट उसके बावजूद भी वो फैमिली में अपनी ये बात शेयर नहीं कर सकते अपने फादर मदर से, जिसकी वजह से वो काउंसलिंग तक पहुंच नहीं पाते।
तो ऐसा कोई भी छोटा सा भी अगर आप मैसेज देना चाहेंगे जिससे उनको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले, ताकि वो भी इस काउंसलिंग थेरेपी या हेल्प को सीख करने के बारे में सोच सके, और फैमिली किस तरह से सपोर्ट कर सकती है, अगर कुछ भी आप कहना चाहेंगे, ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल, देन ओनली। Yeah, see, as I said that it is very much important. Like therapy is like a medicine, especially if we talk about social anxiety disorder or social phobia. It cannot be treated without therapy. And family का support I feel important है. अब अगर मैं monetary terms पे ना जाऊँ, तो like that support matters a lot. Just for me, when I told like to my mother कि मुझे अच्छा नहीं, मतलब मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही कि आई एम लीडिंग माई लाइफ इन अ हेल्दी मैनर, एंड मेरे साथ कुछ गलत है, मेरे साथ कुछ रॉन्ग है, तो दैट फीलिंग जब आपको आ जाती है, वो हिट करती है, तो यू नीड समवन टू talk to, or to express your feelings. So definitely, parents especially should support their children, especially teenagers, um, to go and seek therapy if they don't feel like if they don't feel good. And yeah, like उनका support, उनका motivation बहुत affect करता है कि they go and they go forward आगे, and like improve their state. Yeah. ओके, ग्रेट। एंड रियली जिस जो भी आपने कहा, बिल्कुल मैं उसे एग्री करती हूँ। फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है, नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स बट यस इमोशनल Yeah. सपोर्ट के लिए भी। यस, Yeah. थैंक यू सो मच तारिणी, really for sharing your incredible journey with us today. And really, your story is a beacon of hope for so many who are, struggling with social anxiety. And you are giving a message like that is, it is possible to overcome challenges with courage and determination. To all the viewers जो आज के सेशन को देखेंगे, सो आपके जो इनसाइट्स और एक्सपीरियंसेस है अनडाउटली इंस्पायर करेंगे बाकियों को भी एक स्टेप लेने के लिए काउंसलिंग की तरफ, जो हेजिटेट कर रहे थे, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर करंट जर्नी, जो आप ऑलरेडी अभी परस्यू कर रहे होंगे स्टडीज में अपने। एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि आप इसे कंटिन्यू करेंगे, इसी तरह से शाइन करेंगे अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में। थैंक यू वेरी मच तारिणी फ्रॉम आवर साइड, एंड विश यू गुड लक फ्रॉम आवर साइड। Thank you.